आप मतलब टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि हमें क्या हुआ है। ओके, ये जनरल वार्ड है, जो मरीज आते हैं तो एक कंडीशन ज़्यादा होती है तो यहाँ एडमिट किया जाता है, तो यहाँ उनका इलाज शुरू किया जाता है, ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। गर्ल्स आप लोग शो बातें न करें। Technician or worker should wear gloves before testing because the samples may be HIV positive or maybe a critical disease. So we must wear gloves during the testing. Okay? अंदर इधर सब अंदर अंदर गर्ल्स इधर खदीजा बुशरा खदीजा हाँ जी गोइंग टू द अदर कौन कौन गोइंग चाहिए एक्सप्लेन करो समझ no grades. Okay, so the blood CBC, what you have learned about CBC in the doctor. Well, they are the students of 12th standard, 6th standard. So there are different types of tubes in which we take the blood samples. Okay, so here is the different tube. There are the different chemical in it, and there is a different chemical in this tube. According to color, we decide which sample should be taken in the tube, and we test in the machines. There are different kinds of machines. There are sodium, potassium. Have you heard about sodium? In the salt, we have salt, and in the salt there is sodium and chloride. We test in the body how much chloride, how much sodium in our body. Okay, and there is a protein analyzer. You take protein in the form of food, right? So we test how much protein in the body through this machine. Okay, and here we test about the oxygen. You take inhale oxygen and exhale carbon dioxide. So how much oxygen and carbon dioxide in your body? We test through this machine. This is ABT machine. And this is the chemistry. This is the UPS. It stabilizes the electricity. Okay, so that our machines should be work in a proper manner. It is a biochemistry analyzer. While there your chemistry like liver function, your kidney function, how much your kidney function is properly is good or not, we take this machine, we test with this machine. Okay, and this is the CBC analyzer. Have you heard about hemoglobin? We test through this machine. This is the CBC analyzer. How much? Have you heard about WBC? Red blood cells in your body? No. So hemoglobin is a question. Hemoglobin should test through this machine. Okay? Have you test? Anyone has tested your hemoglobin? Blood. How much blood is present in our body? We test through this machine. CBC counter, cell counter. Okay, these are the machines, and when you will grow, you will learn more about it, and you will clearly understand this. And you will understand the things. When you study about these machines and tests which ma'am has told you, okay? So machineries are used for proper calculation and diagnosis. तो हमने ये जो दिया है यहाँ पर सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्ट होती है वो प्रिपेयर करते हैं। बेटा मतलब ब्लड रिपोर्ट है उसमें होगी सेक्शन होगी, हाँ सेक्शन से ब्लड रिपोर्ट का report versus management and this is LBA 1C report. It is used for the analysis of sugar
glycated hemoglobin. There is a heme and globin human blood. This report showing that if a person taking more sugar, then this sugar will bind to the hemoglobin. And how can we analyze? So we can analyze by HbA1c. ठीक है, तो HbA1c रिपोर्ट हमें बता देती है कि किसी को डायबिटीज है तो उसका क्या लेवल हो सकता है। तो HbA1c से पता चलता है जो 3 महीने से 3 मंथ है ना, 3 मंथ में कितनी शुगर जो है वो खून में हीमोग्लोबिन में बाइंड कर रही है, ग्लाइकेशन कितना होगा, है ना। तो उससे एग्जैक्ट पता चलता है कि उसको डायबिटीज है तो किस लेवल पे है, और जो उसको मेडिकेशन करना है तो किस लेवल पे है ना। मेडिसिन की जो डोज होती है वो अलग अलग होती है, मेडिसिन की जो डोज होती है वो अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसकी जो शुगर लेवल है वो कितना है ना। तो अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो तो आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट उसका नहीं कर सकते। तो अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए पहले खून की जाँच करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो पहले सबसे पहले जो शुरुआत होती है ब्लड इन्वेस्टिगेशन से ही होती है किसी भी बीमारी। अगर किसी को वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है ना, तो सबसे पहले खून की जांच की जाती है। खून की जांच करने के बाद फिर उसको ये पता चल पाता है कि उसके अंदर किस तरह की बीमारी है। अगर टाइफाइड होगा तो उसके लिए टाइफाइड स्पेसिफिक टेस्टिंग होगी। अगर किसी को वायरल होगा तो सीबीसी करके अंदाज़ा लगाएंगे क्या उसका स्टेटस है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके हिसाब से करेंगे। अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, तो लिपिड सफाई करके उसका थोड़ा अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर बातें को कार्डियोग्राफी की जाती है। अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसके लिए ईसीजी किया जाता है ना। तो अलग अलग मशीनों के ज़रिए से हम टेस्टिंग करते हैं। तो मशीनों के ज़रिए से टेस्टिंग करते हैं तो उससे पता चलता है कि एक्चुअल में उसको बीमारी क्या है। जब आप बीमारी को डायग्नोज कर लेते हो है ना, पहले डायग्नोसिस तैयार करना पड़ता है कि ये डिजीज़ है, ये बीमारी है। उस बीमारी के बाद जब आप डायग्नोसिस कर लेते हो तो उसके बाद आप उसका इलाज कर सकते हो, ठीक है। तो बिना जांच के अगर आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको जो है आपने कहा कि मुझे ये परेशानी हो रही है, उसने 2 दवाई लिख के दी आपको, कोई अलग मान के दे दी, तो वो दवाई उसने सिम्टोमेटिक दे दी है, उससे फ़ायदा हो भी सकता है ना। तो क्या होता है, सिम्टोमेटिक मेडिसिन रिलीफ तो कर देती है मगर वो बीमारी क्या थी उसका नहीं पता। बस आपने गोली खाई, आपने सिरप लिया, आपको आराम मिल गया तो आपने सोचा ठीक है। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब बीमारी क्या होता है कि बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं कि हमने ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको पूरी तरह से जांच जब कराते हैं तब उस बीमारी का पता चलता है। तो हमेशा बीमारी की जो इलाज होता है वो जांच के ज़रिए से कराना चाहिए। पहले आप जांच कराएं उसके बाद दवाई लें, है ना। मगर होता क्या है कि जो लोग होते हैं वो पैसे बचाने की वजह से या आसानी की वजह से कि कम से कम उसमें टाइम भी कम खर्च हो और इलाज भी मिल जाए तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन ले लेते हैं। और कुछ लोग तो अपने आप ही जो डॉक्टर दवाई लिख देते हैं जब भी बीमारी होती है उसको खाना शुरू कर देते हैं, है ना। वो गलत होता है। हमेशा जब भी कभी कोई फीवर है, इस तरह का फीवर है, कभी कभी टाइफाइड हो जाता है, अब उसमें आपने टेबलेट खा ली, पैरासिटामोल ले लिया तो आपको टाइफाइड